everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. Today's video is an exclusive right for women. So every woman in our country enjoys some sort of exclusive rights given to them by our constitution and other laws. So these are some basic rights which we might not be aware of. So this video will provide them the information about the rights available to them, exclusively available to them, and secondly, how they can use it. So let's start. So हमारी कंट्री में वुमेन लॉज का ओरिजिन कहाँ से हुआ? सो वुमेन लॉज हमारी कंट्री में तब फॉर्म होना शुरू हुए जब वुमेन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। कुछ ऐसी जेंडर स्पेसिफिक चीजें आइडेंटिफाई की गई जिनके लिए स्पेशल राइट्स देनी पड़ी वुमेन के। सो इनिशियली जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लॉज बने थे, तब सिटीजन बेस्ड राइट्स थे। मतलब मेल फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए थे। कोई भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में। बट फिर कुछ रिपोर्ट्स, कुछ क्राइम्स, कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट हुई जिस वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिकॉग्नाइज हुआ, जिस वजह से ये पता चला कि कुछ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं। तब क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को राइट दिया कि वो वुमेन स्पेसिफिक लॉज इन्फोर्स कर पाए अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। तो तब से वुमेन स्पेसिफिक लॉज, वुमेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस क्रिएट हुए हमारी कंट्री में, एंड उन लॉज और लेजिस्लेशंस की वजह से वुमेन स्पेशल राइट्स एंजॉय करती हैं हमारी कंट्री में। तो आइए देखते हैं वो एक्सक्लूसिव और स्पेशल राइट्स क्या है। सो लेट्स सी। सबसे पहली और बेसिक राइट है हमारी कंट्री की वर्किंग वुमेन के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो ये राइट ये कहता है कि irrespective of gender, whether a person is male or female, if they are doing the same work, they should get an equal pay. If a woman feels that she is doing a work equivalent to men and getting a lesser pay than men, then she can claim her right of equal pay for equal work. So this is the basic right which every working woman in the country should be aware of. So in all the workplaces, there will be no gender-based discrimination, especially in paying. If the person is doing same work, amount of pay for both male and female should be equal. So right of equal pay for equal work says that no discrimination can be made on the basis of sex when it comes to salary, pay or wages. And working women have right to draw an equal salary as compared to men. So when we claim equality, it should not only in the terms of salary but also in the terms of work which we are doing. Second exclusive right available to women is right to dignity and decency. Let's see इस right के अंदर क्या है. So every woman in the country has right to be treated with dignity and decency. अगर किसी वुमेन को अक्यूज किया गया है, किसी वुमेन को किसी भी क्राइम या किसी भी वजह से शी इज एन अक्यूज्ड वुमेन और उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होना है या कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, देन लॉ रिक्वायर्स इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ अनदर वुमेन. सो अ वुमेन कैन क्लेम द प्रेजेंस ऑफ अनदर वुमेन और एनी काइंड ऑफ सच प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड. जैसे कि अगर किसी वुमेन को अरेस्ट किया जाता है और उससे पूछताछ हो रही है, सो लॉ प्रोवाइड्स दैट इट शुड बी डन बाय वुमेन, ईदर डन बाय वुमेन और बाय मेन इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट अनदर वुमेन इन दैट place. So a woman has a right to be treated with dignity and decency. Second most important right is right against workplace harassment, जो अभी recently enforce किया गया है POSH Act से, Prevention of Sexual Harassment at Workplace. So this act provides various rights to women at a workplace and protect them against every kind of harassment at workplace. Now we'll understand this right very briefly. Workplace harassment can be done in a multiple form. It can be physical, it can be mental, it can be emotional. So POSH Act provides what kind of actions which can be treated as harassment at workplace. So harassment at workplace is prevented by POSH Act, Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace. इसमें फीमेल्स को ये राइट दिया जाता है कि किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट अगर वर्क प्लेस पे हो रहा है
तो she can file a complaint immediately. A complaint can be filed to a internal complaints committee, जिसको बोलते हैं ICC, within a period of 3 months. So POSH Act में बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट भी इंक्लूड किए हैं, जो वर्बल भी हो सकते हैं. एनी काइंड ऑफ एक्ट विच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच अ पर्सन हैज गिवन विच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल एंड यू फील दैट यू आर बीइंग सेक्सुअली हरास्ड. अनदर राइट इज राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. सो डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात आती है तो हम सोचते हैं डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मैरिड वुमेन पे होता है, बट यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, इट इज नॉट फॉर only married women. So we have various acts in our country which protects women against domestic violence. So Indian Constitution women को right देता है domestic violence से protection का. अब जो protection of domestic violence है, it can be exercised by wife, by a female living partner, or any kind of woman living in household. She can be mother, she can be sister, she can be daughter-in-law, any kind of woman. If a woman is living in a house and a person living with her is exercising domestic violence over her, she is protected under Indian Constitution. So a definition also includes female live-in partner. So it's not necessary that legally married wife के साथ ही domestic violence हो सकता है. अगर कोई लड़की live-in में रह रही है, then also she has a right to protect it against domestic violence. अब डोमेस्टिक वायलेंस सिमिलरली जो हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस में भी सेम चीज अप्लाई होती है. इट नीड नॉट टू बी ऑफ फिजिकल वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वर्बल एक्शंस आते हैं, इमोशनल एक्शंस आते हैं, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज बाय अ हस्बैंड भी आता है, मेल लिव इन पार्टनर और रिलेटिव्स. सो कोई भी पर्सन जो आपके साथ रह रहा है, वेदर ही इज अ मेल लिव इन पार्टनर और एनी काइंड ऑफ रिलेटिव और हस्बैंड, वो आपके ऊपर किसी भी तरह का वायलेंस एक्सरसाइज करते हैं, जो वर्बल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज के फॉर्म में हो सकता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है और आप इसको इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं. सो अक्यूज्ड ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी पनिश्ड विद अ नॉन बेलेबल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, और इसमें कोर्ट फाइन भी इम्पोज कर सकता है. अब इससे कनेक्टेड एक और राइट है जिसमें फीमेल्स के पास राइट होता है, वो अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रख सकते हैं. मतलब अगर कोई फीमेल ये कंप्लेन करती है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, देन उसके पास राइट है कि वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे. सो शी हैज अ राइट टू गेट हर प्राइवेसी प्रोटेक्टेड. उसके पास राइट है कि वो अपना स्टेटमेंट डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करे, और उसके पास ये भी राइट है कि वो जब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे तो शी कैन डिमांड द प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल ऑफिसर. एक और राइट है हमारी कंट्री में जो वुमेन को दिया गया है, बट इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है. वो राइट है राइट टू गेट अ फ्री लीगल एड. लेट्स सी व्हाट इज दिस राइट. सो अ फीमेल रेप विक्टिम्स को ये राइट दिया गया है जिसमें शी कैन क्लेम अ फ्री लीगल एड. Female rape victims under Legal Services Authorities Act has a right to get a free legal aid or help from Legal Services Authority, and जिनको उनके लिए lawyer भी arrange करना पड़ेगा in case she demands a lawyer. This right is also not very popular. Most of the women doesn't know that. Women has right not to be arrested at night. Let's see what is the nature of this right. This specifies that women cannot be arrested after sunset and before sunrise, provided that कुछ exceptional circumstances में first class magistrate order कर सकता है. Otherwise, a woman can claim to not to get arrested after sunset. अच्छा, एक और right है women के पास, right to register the virtual complaints. Let's see what is this. So this right provide a woman can file a complaint via email या फिर physical letter के थ्रू पुलिस स्टेशन भेज सकती है from her registered postal address. जैसे ही ये complaint, virtual complaint पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उस प्लेस का SHO जिस पोस्टल एड्रेस से वो लेटर आया है उस प्लेस पे विजिट करेगा टू लिसन टू हर कंप्लेन एंड टू रिकॉर्ड इट. बस इस सिनेरियो में शी नीड टू प्रूव दैट शी इज नॉट फिजिकली केपेबल टू गो टू पुलिस स्टेशन टू फाइल कंप्लेंट. अ वुमेन हैव राइट अगेंस्ट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. मतलब अगर किसी वुमेन का
इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में किया गया है, चाहे पिक्चर्स फॉर्म में, चाहे वर्ड्स के फॉर्म में, जिसमें वुमेन बॉडी या वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है, देन शी हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट. सो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, अगर किसी वुमेन के फिगर को, बॉडी पार्ट को किसी भी मैनर में, डेरोगेटरी मैनर में शो किया गया है, जिससे अ वुमेन कैन फील derogatory or any kind of representation which is against public morality is also a punishable offense. So every woman has right against indecent representation. Another right available to women is right against being stalked. The cases of eve teasing, stalking is very prevalent in our country. Let's see what is the detailed version of this right. If a person is following a woman, she is being stalked by someone, वो उसको constantly contact करने की कोशिश कर रहा है through a cell phone, through a mail, प्रोवाइडेड उस लड़की ने क्लियरली अपना डिसइंटरेस्ट इंडिकेट किया है. और स्टॉकिंग की डेफिनेशन में इंटरनेट स्टॉकिंग को भी इंक्लूड किया गया है. सो अगर कोई पर्सन वुमेन को इंटरनेट पे स्टॉक कर रहा है, ईमेल कर रहा है, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहा है, सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक कर रहा है, जिसमें वुमेन ने क्लियरली उसे इंडिकेट किया हुआ है शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी डजंट वांट द पर्सन टू फॉलो हर और स्टॉक हर, उस केस में भी a woman can file a complaint under Indian Penal Code against this kind of offender. So woman has a right against being stalked both physically as well as on internet. Another right available to women is right to file zero FIR. सो जीरो FIR का मतलब होता है वो FIR जो लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है. जनरली FIR उसी थाने में फाइल करी जाती है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है, बट वुमेन के केस में इनके पास राइट होता है कि वो जीरो FIR फाइल करे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इंसिडेंट किसी और थाने के जुरिस्डिक्शन में हुआ है. So FIR which is not specific to jurisdiction is called zero FIR and women has right to file a zero FIR. Later on उससे स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में मूव किया जा सकता है, बट इमीडिएट FIR रजिस्टर करना पड़ेगा अगर वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाती है, इररिस्पेक्टिव कि इंसिडेंट उस जुरिस्डिक्शन में ना हुआ हो. ये रूलिंग पास की थी सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों के लिए, विक्टिम का टाइम सेव करने के लिए और इसलिए कि ऑफेंडर के पास इनफ टाइम ना रहे भागने के लिए. सो वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन 8th March of every year since 101 years. But the condition of women, major part of our country, especially in rural areas, is not good. Most of the women in our country are not even aware about the basic rights available to them. And women rights तो बहुत दूर की बात है, उनको basic human rights से भी deprive रखा जाता है हमारी country में. So, celebrating Women's Day and feminism is the term only limited to urban class of our country. The women in our country are still suffering from basic human rights. This is my small attempt to make you people aware, especially women, about the basic rights exclusively given to them by laws of our country. In case you need to know anything about women rights in our country, you can visit to National Commission of Women website through this link. From this section, you can even file the complaints to National Commission of Women. In case you need any kind of information, RTI online RTI section is also available. So this is a website of National Commission of Women. Thank you so much.